A very good morning to all of you. Welcome back to the channel. So let's start with the analysis video for 2nd of October. So for us, from the perspective of this Gaza war and the map work, Rafah crossing, kahan located hai, exact location. So this is basically a crossing border point between Egypt and Gaza. So that's called the Rafah crossing. So selective confidentiality in the electoral bonds, it may not suffice. This is what the Supreme Court has to say. So we've been talking about daily क्या developments हो रही है over challenges to electoral bonds. So Supreme Court ने बोला है, basically center ने Supreme Court को पहले ये बोला था कि consumers और आप RTI फाइल करके you can't get to know about anything and everything about the electoral bonds या sources of funding. So यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज पे बोला है कि selective confidentiality is basically something which is not desirable or it is not permitted. So this is one component of the debate. So let's see final verdict क्या रहेगा. Then we'll be taking up this for further discussion. औरशिक आपको इस पे कुछ और रेज करना है? नहीं मानसी, ये ले लेंगे उस समय Final verdict पे फाइनल we'll take this up. So October gross GST collections climbed to rupees 1.72 lakh crores. So firstly हमारे लिए trend समझना भी important है, trend हमें पता होना चाहिए. So through this graph, this is for October 2022 and October 2023. तो 1 year time period का है. We have been seeing कि more or less अब एक average level है, which we can say is somewhere around 1.5 lakh crore rupees, जो monthly basis पे GST revenue raise हो रहा है. And past 3 months की अगर हम बात करें तो it has been on a gradual upward trend या steady upward trend भी हम बोल सकते हैं. So 13.4% with the revenue growth marks the sharpest year-on-year uptick since December 2022. And again, the 3-month streak of deceleration, it has broken that as well. So firstly यहाँ पे हमें difference भी पता होना important है. IGST, SGST और CGST जो exist करता है. यहाँ पे basically जो तीनों के बीच में difference है, that is कि suppose there is trade of goods between the states, interstate trade है, तो जो revenue raise होगा that would be going to IGST. So अब SGST जो है वो state में जाएगा अगर it is basically intra-state only. And सेंट्रल जीएसटी के लिए इट इज फिक्स्ड की जो रहता है दैट इज देयर. सो आई थिंक नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड. इसमें और कोई पॉइंट तो रेज नहीं करने लायक, ना इम्पोर्टेंट नहीं है. तो यूपीएससी टाइटन्स द रूल्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट पुलिस चीफ्स. सो जिनको हम बोलते हैं डीजीपीस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस. सो स्टेट पुलिस चीफ्स ये हाईएस्ट वी कैन से डेजिग्नेशन या रैंक जिसको हम डीजीपी बोलते हैं. सो इसके रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट में हमने बहुत टाइम पहले हमने ये चीज देखी थी कि अपॉइंटमेंट्स में कहीं ना कहीं जो मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट्स था या जो फैक्टर्स थे ऑफ डिसाइडिंग कि हु वुड बी द डीजीपी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, वहां पे थोड़ी डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिल रही थी. सो to bring in transparency and it remains objective, political interference ना हो, UPSC had basically tightened the rules. Rules पहले भी exist करते थे but उनको थोड़ा और strict बनाया. जो loopholes थे उनको address करने की कोशिश की जा रही है. So here only the police officers with at least 6 months of service left before the retirement, they will be considered for the appointment as the DGPs. So this is one new addition which has been done by the UPSC in the guidelines. And in another change, the empanelment committee which would be constituted by the UPSC, it will not assess the IPS officers on central deputation for the state DGP's post if the Union Ministry of Home Affairs says कि it will not be possible to relieve the officers. तो जो officers, IPS officers central deputation पे रहेंगे, they wouldn't be considered for this post of DGP until and unless Home Ministry परमिट नहीं करती है कि दे कैन बी रिलीज. तो वो टाइम पीरियड अगर होगा then they can be again appointed as DGPs. So this is there. So senior government officials का इस पे अब क्या टेक है? दे से कि जो अमेंडमेंट्स की गई है it makes explicit what have been considered unwritten norms. तो बेसिकली जो unwritten norms थे now we have that as official rules.
So even as some states, they have appointed the DGPs on the verge of retirement also, matlab there is very less time period for the retirement and उन officers को भी as DGPs appoint किया गया है. Many states, they have appointed the acting DGPs to avoid the due process. So government source का कहना है कि जो guidelines है, they were revised to discourage the states from appointing their favorite officers who are about to retire in a bid to extend their tenure. तो ये देखा गया कि definitely अगर जो time period है for retirement में बहुत less बचा है, तो ये ज्यादा देखा गया कि उनका tenure को extend कर दिया जाता है after they're appointed as DGPs. So इन चीजों को plug करने के लिए, address करने के लिए these changes have been made. मानसी ऊपर में लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ शॉर्टलिस्ट कैनॉट एक्सीड 3, मतलब कि The 3 number ऑफिसर of होंगे shortlisted शॉर्टलिस्ट cannot exceed 3 officers, but may consist of less than 3 officers in exceptional circumstances. So in is basically जो collegium बनेगा, इसमें से shortlist होगा, who will be the final DGP of a state. So officers will not be included in the panel unless they themselves are willing. So that's there. So these are some specific changes जो किए गए हैं. So global conference on digital transformation would be held from 3rd of November, and it would be hosted by the National Law University, Delhi. And the theme is Education 4.0 and Beyond, the Dynamics of Learning Through Digital Pathways. So around 60 industrial experts, they would be participating, 250 delegates from different countries, and it will also witness the participation of representatives from 20 law universities. So इस पे औशिक आपका क्या कहना है? जो हमने देखा है post COVID-19 edtech revolution जो हमें specifically देखने को मिला है, तो what are the positives, what are the negatives? What do you think कि edtechs की जो growth है वो क्या हमारे लिए बेनिफिशियल रही है, या उसने हमें कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा रहे हैं? If we assess the EdTech revolution, then I think it is beneficial because it has helped to connect the students from the rural background during the COVID, and also it had helped students to catch on with the post-COVID learning crisis जो भी हुआ था. So, but we have to make sure that EdTech is not exploiting the students. For example, बाइजू का जो हुआ है बबल बस्ट, वो दिखाता है कि एडटेक रेवोल्यूशन के अंदर में एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन चाहिए कि वो बेसिकली दे आर स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और रादर देन कोचिंग इंस्टीट्यूट. मतलब डिफरेंसेस पता नहीं चल सकता है. कभी कभी एडटेक स्कूल का बात करते हैं उन लोग, जैसे फिजिक्स वाला ने बात किया कि अभी यूनिवर्सिटी खोलेंगे, तो एडटेक में वो है क्या, कोचिंग इंस्टीट्यूट है कि यूनिवर्सिटी है कि वो स्कूल है कि कॉलेज है. तो ये मिक्स्ड उनका एक रहता है, जिसके कारण बहुत सारे मैनिपुलेशन हो जाता है एजुकेशन सेक्टर में. एक जो कंसर्न सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ है इस पूरे रेवोल्यूशन के बाद, वो यही है, स्पेसिफिकली कोचिंग इंडस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपर्टीज ऑफ द टीचर्स, बिकॉज वी आर सीइंग कि इवन स्टूडेंट्स दे हैव बिकम टीचर्स. तो यहाँ पे जो एक्सपर्टीज वाला एलिमेंट है दैट नीड्स टू बी असेस्ड, या तो स्पेसिफिकली अगेन कोचिंग इंडस्ट्री के लिए कि तो कोई सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए, इशू होना चाहिए, सो दैट्स टू असेस द प्रॉपर एक्सपर्टीज एंड द स्किल्स ऑफ टू बी अ टीचर. So this is one thing, and मानसी, definitely एक और मानसी, इफ यू आर सेइंग कि कोचिंग इंस्टीट्यूट टीचर्स का जो स्किल है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन बात यहाँ पर हो जाता है ना, आपने सही बोला कि ये होना चाहिए, लेकिन वो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, दे कैन से दैट दे आर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, तो दे कैन होता है ना यूज द एनी स्किल ऑफ द टीचर. बट एट द सेम टाइम अगर वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगर घोषित किया जाएगा उन्हें, तब उनको रेगुलेट करना पड़ेगा स्किल्स को. लेकिन वैसा है नहीं अभी.
अभी तो प्राइवेट संस्थान है, किसी को भी हायर कर सकते हो, किसी को भी फायर कर सकते हो। नहीं, यहाँ पे एक आई एलिमेंट थिंक दिस। तो आ सकते हैं, जैसे आपने बोला कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो बोल सकते हैं कि या प्राइवेट इंस्टीट्यूट हम हायर कर सकते हैं किसी को भी एज पर जो उनको सही लगता है। बट यहाँ पे अगर ये देखा जाएगा कि वो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को हैम्पर करेगा, तो आई थिंक कि दे कैन बी रेगुलेटेड। तो कहीं ना कहीं फिर वो फंडामेंटल राइट एंड हैम्परिंग, वो जो कंप्लीट जस्टिस वाला एलिमेंट है, पावर्स है विद द सुप्रीम कोर्ट, आई थिंक दैट कैन बी यूज्ड। बट अगेन यस। उसमें कुछ अगेन परमानेंट चेंजेस करने इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी एक चीज देखने को मिली है कि मोर स्टार्टअप्स हमें ज्यादा देखने को मिली है इन स्पेसिफिकली एडटेक्स। सो वहां पे भी जो एलिमेंट है ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, वो ज्यादा इंक्रीज हुआ है, या वी आर सीइंग इट मोर एज कैपिटलिस्ट काइंड ऑफ थिंग। सो दैट आई थिंक एजुकेशन जो है, इट शुडंट बी सीन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। सो जो कोर्स के प्राइसेस हैं, उसको आप कैसे किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो, सो उसके लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म या फॉर्मूला होना चाहिए, so that again जो students हैं from the lower rung, from the economically weaker section, they can also get access and take advantage of these online courses which are available. यस मानसी, वी कैन मूव फॉरवर्ड। मानसी, यू कैन टेक अप SYL कैनल, जो कैनाल था। So opposition parties, this skips the man's open debate on वो है क्या, और डिबेट अभी भी चल ही रहा है, बेसिकली वो जानना है। हाँ, अभी इस कुछ टाइम तो पहले रिसेंटली वी टुक दिस अप एंड वी डिस्कस की इवन सुप्रीम कोर्ट इंटरव्यूड इन दिस एंड सेड कि पंजाब स्टेट ने जो है जो चेंजेस करने चाहिए थे वो कर दिया एज फार एज जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होनी चाहिए थी, बट हरियाणा हैज नॉट बीन अडेयरिंग टू दोज ऑर्डर्स। सो वी आर सीइंग कि दे आर नॉट बीइंग टाइमली इम्प्लीमेंटेड, सो इट वाज ऑर्डर्ड कि हरियाणा आल्सो टेक एडिक्वेट स्टेप्स ऑन टाइमली बेसिस, एंड जो भी ऑर्डर्स थे उनको अडेयर करना इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज वाई यहाँ पे कि ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि इसलिए प्रोग्रेस आगे नहीं हो पा रही है ओवर दिस डिस्प्यूट। सो सतलुज यमुना लिंक कैनाल जो है, इट इज अगेन अ डिस्प्यूट बिटवीन द स्टेट्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब ओवर वाटर शेयरिंग। सो दैट्स देयर। एंड वाटर इज अगेन अ स्टेट सब्जेक्ट है। So here we are seeing कि Karnataka में the Chief Minister of Karnataka reiterates primacy to Kannada language. So he proposes कि Kannada, it should be the administrative language to take programs to Kannada people across the state. And even he's saying कि exams जो है competitive exams या even school examinations वो होने चाहिए ओ okay only in English or Hindi. सो बेसिकली इससे इसको अपोज किया जा रहा है कि एग्जाम्स को सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में करने के अगेंस्ट दिस ऑपोजिशन फ्रॉम द सीएम ऑफ कर्नाटका। सो इस पे आपका क्या कहना है औशिक? पहली बात यहाँ पर डिफरेंसेस यहाँ पर है कि इफ द एजुकेशन बोर्ड इज अंडर द CBSE, then the English and Hindi should be there. But if the education institute is under the state board, then Kannada language should be promoted. And regarding the promotion of Karnataka language as a language, as a official language, then I think it is the right step apart from English language. तो इंग्लिश के अलावा कन्नड़ा को भी प्रमोट किया जाता है इन द स्टेट ब्यूरोक्रेसी। दो लैंग्वेज होना चाहिए, So ये do कर we सकते have हैं। any तमिलनाडु ऐसे करते constitution ही है। article or provision on this कि states can promote their regional languages as the official हाँ, languages of इसलिए the कर सकते हैं। हाँ, ये तमिलनाडु के पास है ना कि वो इंग्लिश और तमिल यूज करते हैं एज ए स्टेट लैंग्वेज। okay। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि स्कूल एजुकेशन में भी प्रमोट करना चाहिए इंग्लिश और हिंदी। तो आई थिंक अगर CBSE और ICSE रहे तो इंग्लिश और हिंदी ही होना चाहिए, क्योंकि नेशनल लेवल पर है। तो उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए जो सेंटर का स्ट्रक्चर है।
हाँ, कि मतलब रीजनल प्रमोटिंग ऑफ एजुकेशन इंग्लिश। हाँ शुड बी वन ऑफ द हाँ ऑप्शंस, मतलब हाँ, आप स्टेट बोर्ड का होगा तो फिर कर्नाटका होना चाहिए। हाँ इवन और नेशनल अगर एजुकेशन हाँ, पॉलिसी भी जो हाँ नेशनल एजुकेशन हाँ ऑप्शन होना चाहिए, जैसे संस्कृत हम्म, था, हाँ हमने में था आईसीएसई में, तो हम्म सीबीएसई में हो सकता है संस्कृत होगा, हाँ या फ्रेंच हो सकता है, कुछ भी रख सकते, तो हम्म, थर्ड लैंग्वेज एज अ कन्नडा मैंडेटरी रखना चाहिए मुझे, ऑप्शन रहेगा मैंडेटरी थर्ड लैंग्वेज, कि एक कोर्स होना चाहिए उसका, कि क्योंकि जो लोग दो पढ़ रहे हैं उनको आइडिया होना चाहिए कन्नड़ा लैंग्वेज कैसे यूज होता है बेसिकली, थर्ड लैंग्वेज जो, वही जो एनईपी कहती है, the हाँ। national education policy talked about the three languages system in which Hindi and English will be promoted, and side by side the local language will also be there. So Kerala village bets big on mushroom coffee brand. So one day we were talking about a new species of mushroom which was discovered from Western Ghats. So यहाँ पे mushroom coffee brand की बात हो रही है. So I think I will be spotting exact name of that. So entering a niche market is not easy task, especially when you're operating Third from paragraph. Lavur. So Also, here, uh, third paragraph, third. No, और आगे मतलब right side. so जो project है that is named as Koon Gramam, which is a project to extend the mushroom cultivation in Kerala. So local body participation, their role is important. So they have started training around 100 farmers को training दी जा रही है कि mushroom को आप cultivate कैसे करते हो, क्या पूरा process and methodology होता है. And that basically ये जो mushroom है, it will be procured for the production of larvae. So I think this is the variety of mushroom, I think is the name of it. Since ये हाँ organic product है, which is rich in antioxidants, customers, they would want to increase the diet quality and stay healthy. So that is one of the ways why even, mushroom is important. So this is the name. Different varieties and blended forms would be the options available to the consumers. And so sun-dried oyster mushroom, they contain lot of vitamin D, and turkey tail is good for the bone health. So from the perspective of science, this is important. So I think this is the important information available here. And so here we see ki lion's mane. This is also a type of mushroom variety, and turkey tail. They're not cultivated here as we need to maintain they low are not really a lion's farm. mane or turkey's tail, they are type of mushroom. हाँ, We have already mushroom discussed what are type of mushroom are there and के लिए its uses in different sectors, कहाँ कहाँ use हो सकता है. So yeah, मतलब one of the climatic condition which is required for the cultivation is low temperature, promotes the growth of mushrooms. I think this topic we've already taken up in detail. We have covered several aspects, rights of fetus, important हो जाते हैं, women's bodily autonomy and her rights. Then reproductive rights, one of the important keywords जो इसी के लिए हम debate कर सकते हैं. MTP Act जो Medical Termination of Pregnancy Act है. There were certain changes that were made, and of late एक case भी चल रहा था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये जो rights of unborn fetus है वो एलिमेंट ज्यादा हाईलाइट किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट अलाउ फॉर द अबॉर्शन जो था अगेन 26 वीक लॉन्ग प्रेगनेंसी केस में. So Supreme Court and CJS said कि जो ये केस है, this fell outside the scope of this Medical Termination of Pregnancy Act of 1971. So जो act है, one of the provisions is अगर आपको you're a pregnant woman beyond 24 weeks and तो वो अगेन कुछ ऐसे रेयर केसेस रहते हैं वेयर इट कैन बी अलाउड, बट इस केस में अलाउ नहीं किया गया. लाइक दैट्स वेरी रेयरेस्ट ऑफ रेयर थिंग अगर वो अलाउ किया भी जाता है कभी. So even 24 weeks की pregnancy में only in cases where the fetus exhibited substantial abnormality or when the woman's life was under direct threat, then only abortion is permitted in such cases. So since the doctors, they would have to terminate a viable fetus, the term is viable fetus, court rejected this plea to exercise its extraordinary powers. So यहाँ पे हमने had a discussion कि क्या मतलब अगर fetus would be born and women do not want to have a baby, so one of
These solutions in such rare cases can be the orphanage homes. So that can be one thing. औषध आपको यहाँ पे कोई और कुछ बोलना है? बाकी चीजें हम already नहीं मानसी, हमने ले लिया था ये. fetuses and rights, that's there. ठीक है, can move forward. इसमें एक ऊपर एक आप ले सकते हो. हाँ, एआई एंड इश्यूज ऑफ ह्यूमन सेंट्रिसिटी इन कॉपीराइट लॉ. अब इसमें एक और एक प्रॉब्लम है. मैं इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ, बस प्रॉब्लम हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये तो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कॉपीराइट के ऊपर सिर्फ. तो मैं इसमें दो आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा हूँ. फर्स्ट इज कि इफ वी आर यूजिंग एआई, फॉर एग्जांपल टेस्ला व्हीकल uses AI to use a very lane-centric system computer so that the self-driving car can be put to use. तो सेल्फ ड्राइविंग कार में अगर एक्सीडेंट होता है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, एआई और द एल्गोरिथम और द कंपनी टेस्ला. तो ये चैलेंजेस है एआई का. सेकेंड वुड बी, अगर आप इफ यू आर यूजिंग एआई टू मेक बुक्स, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन बुक्स या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बुक्स, तो उसका जो आप यूज कर रहे हो कंटेंट फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स ऑफ सोर्सेस एंड ऑल्सो द पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन यूज कर रहे हो कंटेंट में, तो इसका ओनर कौन है? इट इज द एआई और इट इज अ ह्यूमन दैट इज यूजिंग द एआई. तो ये सब वही दिखा हुआ है फोर्थ पैराग्राफ में. कॉपीराइट कैन प्रोटेक्ट ओनली मटेरियल दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी. Fundamentally, the term author used in both the Constitution and the copyright excludes non-human. राइट से मानसी, मतलब सेकेंड कॉलम में. तो आई थिंक दो एक एरिया है जहां पर देखना चाहिए कि उसमें एआई का रोल क्या होगा और ह्यूमन सेंट्रिक होगा, और क्या दोनों का जो फाइन बैलेंस है वो अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है. तो आई थिंक दिस इज द ओनली आर्गुमेंट विच आई वांट टू हाईलाइट. कॉपीराइट की अगर बात आपको ऐड कुछ कॉपीराइट की भी बात हो रही है कि क्या फिर ऐसी जो बुक्स एआई टेक्नोलॉजी पे बनाई जाएंगी, स्क्रिप्ट की जाएंगी, तो उस पे अकाउंटेबिलिटी किससे होगा? हाँ. हाँ वही है. जैसे अभी चैट जीपीटी इज बेसिकली a language processing AI, whereas Mid Journey is used for painting or drawing by the AI. तो दोनों को यूज करके बनाएंगे बुक, तो कॉपीराइट किसका होगा? अब एआई का होगा कि आपका होगा? तो ये चैलेंज. वी कैन टेक अप नेक्स्ट वन. ये तो ले लिए. दिस इज बीन डन. गाजा वन. इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी हो चुका है. जो फैक्ट्स हैं वो तो पता ही है. सो यूएस इजराइल रिलेशंस के बारे में हम बात कर सकते हैं. हाउ दे हैव बीन, कैसे चेंज हुए हैं. So what event brought about this paradigm shift in the way Washington looked at the Jewish state? And क्या basis है of this special relationship between the two countries? And pro-Israeli forces जो हैं, how do they basically exert a strong influence in US public sphere? So हमारे लिए मतलब it is important for us to know all these things. So origins of US-Israel ties, we see US had supported the idea of the Jewish homeland even before the state of the Israel was declared within the historical Palestine 1948 May. So 1919 May, 2 years after this, Balfour Declaration. So this is important. Balfour Declaration, it is related to US and Israel ties, in which British government declared its support. Okay, it is not between US and Israel specifically. So Balfour Declaration में British government, they have declared the support for creation of a Jewish homeland in Palestine. And another important term is Oslo Accords. As far as this is concerned, the Israel-Palestine issue is concerned. So Oslo Accords, basically, they were undertaken, they were signed to resolve this dispute to two-state solution के लिए. It was there, but again, कुछ ऐसा substantive result नहीं निकल के आया, and things remains the same. So UK and US, they are in support of Israel, and they support the creation of a Jewish state. So that's their Balfour Declaration, this we have taken up. Then when we see, so initial 2 decades if we talk about the relationship between US and Israel, so their relationship was not that too smooth.
So Eisenhower administration was unhappy with the result, along with the France and Britain, and they launched the Swiss War. So during this time period, again, USA and even मानसी, मैं Britain. उठा लेता हूँ इसको Okay. सॉफ्ट, मतलब इजी स्पीड में। देखिए, पहली बात है कि आप हिंदी में उठा लेता हूँ, आसान हो जाएगा पूरा। कि जो जूविश होमलैंड था, इनका जो स्टार्टिंग थे, इट वाज फ्रॉम 19th सेंचुरी। और इसको जायोनिस्ट इसको बोला जाता है, आइडियोलॉजी। इन्होंने सोचा कि जूइश पीपल के लिए एक होमलैंड होना चाहिए, क्योंकि वो बाकी लोग जो थे, दे वर स्प्रेडेड अक्रॉस द यूरोपियन कंटिनेंट एंड ऑल्सो द अफ्रीकन कंटिनेंट। सब जगह आप हर एक कंट्री में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख टाइप से थे। तो वॉर जब हुआ था तो उसमें कुछ कुछ परसिक्यूशन का इशू हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा होमलैंड होना चाहिए जहाँ पर सब जूविश पीपल हैव द राइट टू कम टुगेदर एंड मेक अ होमलैंड, ऐसा था। तो 1919 में जो आपने बताया कि बैलफोर डिक्लेरेशन, उसके अंतर्गत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया सब फॉर द सपोर्ट टू द क्रिएशन ऑफ जूविश होमलैंड पैलेस्टीन। तो पैलेस्टीन का भी इशू हमने लिया कि क्यों पैलेस्टीन कहा जाता है इसको। रोमन किंग ने दिया था पैलेस्टीन का वर्ड, और बहुत पहले, मतलब आज से 1200-1300 पहले। अब इसके बाद जब जूविश होमलैंड हुआ तो वहां पर राइट टू माइग्रेशन इस्टेब्लिश हुआ जूविश होमलैंड के अंदर में। तो वापस से लोग वापस बाहर से, यूरोप से और अफ्रीका से, कंट्री से माइग्रेट किए जूविश होमलैंड में। उसके बाद वे 1940s में देखा जाएगा तो जब फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और जब हॉलोकास्ट हो रहा था, देयर वाज अगेन माइग्रेशन ऑफ द जूइश पीपल फ्रॉम द रशियन ऑक्यूपेशन इन द ईस्टर्न यूरोप, एज वेल एज फ्रॉम द जर्मन ऑक्यूपेशन इन फ्रांस और बेल्जियम एक्सेट्रा, और दिस रीजन नाजी जर्मनी के अंदर में। तो उसके समय, उसी समय में फिर जो जूइश पीपल थे इन द यूएस, दे वर इन द हायर अप्स इन द ब्यूरोक्रेसी एंड आल्सो इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जो भी बड़े बड़े मैग्नेट हो गया, ऑयल मैग्नेट हो गया, तो दे सपोर्टेड द गवर्नमेंट ऑफ द यूएस, प्रोवाइडेड दैट दे सपोर्ट द जूविश होमलैंड। तब उसी में फिर यूएस का वहां से स्टार्ट हुआ। तो 1944 में देखा जाएगा यूएस से पास ए रेजोल्यूशन एंडोर्सिंग बैलफोर डिक्लेरेशन। तभी जाकर उनको एक तरह से फंडिंग मिलेगा, जो भी पार्टीज को और बाकी सबको। तो यूएसए वहां से स्टार्ट करता है पहली बार ओपनली सपोर्टिंग द जूविश स्टेट। तो 1948 में रिकॉग्नाइज हो गया, क्योंकि यूएन की तरफ से उनको आज़ादी मिला, इंडिपेंडेंस हुआ। इंडिया इंडिपेंडेंट 1947 था, उनका इंडिपेंडेंट 1948 था, और उनको एक रिकॉग्निशन मिल गया। तो पैलेस्टीन में क्या होगा, अब उसका आगे देखा जाता है। फिर जैसे ही स्टार्ट हुआ 1948 में वॉर हो गया, अरब एंड एक बार इसराइल आप वॉर बस जिसको मेरे को बोला जाता है। ये क्लैरिफाई दे दो, आपने इंडिपेंडेंस की बात हम्म। करी तो कौन सी कंट्री की आप यहाँ इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हो? यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि इंडिपेंडेंस टेक्निकली, मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकली जूइश का अच्छा, इंडिपेंडेंस, ठीक। कि हाँ। उन्हें मिला था ब्रिटिश से, ब्रिटिश ना, ब्रिटिश ऑक्यूपेशन जोन था वहां पर। जॉर्डन, जॉर्डन हो गया, नीचे में सीरिया हो गया, उसे पूरा ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के अंदर में था। ठीक है। तो वो पैलेस्टीन वहां पर था, तो वहां पर जूइश बनाया गया। हम्म। जूइश को मिला टेक्निकली, मैं टेक्निकली वर्ड कर रहा हूँ इसलिए। ठीक है। तो 1947 इंडिया को मिला, 1947 में, 48 में इसको। और उसके बाद फिर वॉर हो गया, क्योंकि जैसे ही इंडिपेंडेंस मिला तो वैसे ही अरेबिक कंट्रीज ने सोचा कि अब शॉर्ट स्टेट है, छोटा है, स्टेट है, पावरफुल नहीं है, तो वॉर किया जाए उसको। हाँ, तो पहला वॉर अरब इजराइल वॉर हुआ था 1948 में। उसके बाद जब दे वर एबल टू कंसोलिडेट देयर गेन्स, इसराइल इसराइल वर एबल टू कंसोलिडेट द गेन्स, और वो चलते गया। उसके बाद फिर होता है, नीचे में आएंगे, स्विस वॉर 1962 में, नहीं 1967 में, हाँ। तो 6 डे वॉर उसको बोला जाता है, क्योंकि उस दिन ऐसे, आज इस बार कोई इसराइल का डे था, हॉलीडे था, वैसे ही वहाँ उस समय भी था। नहीं नहीं, यहाँ क्यों डिफरेंट, इस कुछ एक ऐसी हॉलीडे था। तो उसने क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ कि जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट एक्सेप्ट ऑल द कंट्रीज, दे ट्राइड टू अटैक इसराइल, एंड इसराइल यूज्ड disproportionate measure using their own air force to eliminate all the air force air and airfield of the neighboring countries। तो 6 डे वॉर में जीत गए, और जो सेनाई पेनिनसुला है वो कैप्चर कर लिया इसराइल। हम्म। उसके बाद 71 में फिर वॉर हुआ, 71-73 के आसपास, इंडिया में जब इंडिया पाकिस्तान हो रहा था, तो उस हम्म। समय फिर वॉर हुआ 73 में, जिसमें सिनाई जो पेनिनसुला था तो इजिप्ट ने वापस ले लिया। वो वॉर वैसे ही था जैसे अभी का गाजा का हुआ है, क्योंकि ठीक। 50 ईयर्स बैक उस समय भी छुट्टी था, और उस समय भी एक हॉलीडे था, एक तरह से इसराइल का मेन अभी चलता है 10 दिन का, उन लोगों का फेस्टिवल चलता है, जैसे हम्म। इंडिया का है ना दुर्गा पूजा या फिर हम्म। दशहरा।
तो समझ जाइए कि दशहरा मतलब कि सब में छुट्टी है। इंडिया में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन वहां पर ऐसा होता है। तो उसमें भी अटैक हुआ, उसी समय अटैक हुआ। और उन्होंने फिर एक तरह से कंसोलिडेट किया कुछ अपना लोकल एरियाज में, लेकिन इसराइल को साइन करना पड़ा। तो वही साइन जो उन्होंने किया है इजिप्ट के साथ, आफ्टर इजिप्ट हैज कैप्चर्ड सिनाई पेनिनसुला, और दे वर एबल टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर, जो अरबिक कंट्रीज। तो इसराइल हैड साइंड पीस ट्रीटी विद इजिप्ट एंड जॉर्डन। तो उसको बोलते हैं हम लोग, हमें कैंप डेविड अवार्ड अवार्ड 1978 के आसपास है। ठीक है। तो 1970 में कैंप डेविड होता है। उसके बाद फिर जो इंडिया का इवोल्यूशन होता है, कैंप डेविड के बाद ही से स्टार्ट होता है धीरे धीरे। तो 1990s में पहली बार इंडिया का कॉन्सुलेट स्टैब्लिश होता है और रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है। और वहां से आज तक इंडिया का धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है रिलेशनशिप इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, ये डिफेंस एक्सेट्रा। और उसके 1978 के बाद से इसराइल का हमेशा रहा है कि जो उस समय जो थे यासिर अराफत, पीएलओ के थे पैलेस्टीनियन में, उनके साथ डील करते रहो और साइड बाय साइड यूएस से फंडिंग लेते। तो ये लिखा हुआ है कि यूजर इजराइल इज द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ अमेरिकन एड। इट रिसीव्ड अराउंड $158 billion इन एड फ्रॉम द यूएस सिंस द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो हर बार यूएस को एड मिलते रहते हैं, क्योंकि यूएस का फॉरेन पॉलिसी ऐसा रहा है कि इजराइल इज द ओनली डेमोक्रेसी एंड डेवलप स्टेट इन द अरेबिक कंट्रीज। और इसराइल को फंड करने से एक फायदा होता है यूएस को कि जो वॉर मशीन वो चलते रहते हैं, और उनका जो स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस है इन द रीजन वो बढ़ा रहता है। तो यही हुआ। तो हम्म, फिर उसके बाद फिर उन्होंने गोलन हाइट पर कैप्चर किया। वही हाँ। बात है कि हाँ, तो कैप्चर गोलन हाइट सेनेन पेनिनसुला 1982 में यूएस एंड मल्टीनेशनल फोर्स। तो ये अभी चलते रह रहे हैं इसका लगातार। तो कैंप डेविड रॉ लिखेंगे लास्ट में, कैंप डेविड अकॉर्ड पीस ट्रीटमेंट, वो हो चुका है। उसके बाद पैलेस्टीन हमेशा इसराइल का रहा है कि धीरे धीरे कैसे हम लोग एक्सपैंड करें। तो जो एक्सपैंड होता है ना मानसी, हम्म। कि हर बार एक आदमी को भेजना है, वहाँ एक्सपैंड करना है, तो उसी को, तो उसको डील करने के लिए पैलेस्टीनियन जो अथॉरिटी है उनको सोचना चाहिए था कि पीस ट्रीटी साइन कर ले। लेकिन उन्होंने हमेशा बोला है कि हम लोग जब तब चाहते हैं पीस ट्रीटी, जब तक इसराइल रहे ही नहीं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता हर बार। तो क्या हम्म। होता है कि हर बार जब एक रेडिकलिज्म बढ़ता है, तो हमेशा एक तरह से उनका पीस ट्रीटी करने का जो साइन का एक तरीका है, वो खत्म खत्म होने लगता है धीरे धीरे करके। और यही कारण है 2005 में जब गाजा में एक हमास का गवर्नमेंट आया पहली बार, तब से पीस ट्रीटी खत्म हो गया। और लॉन्ग टर्म एक होता है ना, एनिमी का स्टेटस मिल गया दोनों को एक दूसरे के हिसाब से। और फिर धीरे धीरे वॉर की तरफ आ गए, और आज जो स्थिति है उसी का फॉल आउट है एक तरह से। हाँ। तो थैंक यू। वही एग्जांपल दो इंस्टीट्यूशन ले सकते हैं। एपैक, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर कमिटी, इट इज ए पावरफुल इजराइल लॉबी that that funds the political executive, for example president, senators, prime minister, etc. तो बहुत इसे इम्पोर्टेंट। तो एक शॉर्ट एक इवोल्यूशन था रिलेशनशिप बिटवीन द इजराइल एंड यूएस, एंड ऑल्सो द कैसे इजराइल आया, मतलब इस हाँ, एग्जिस्ट और किया। इस यूएसए इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है इसराइल को, मतलब यूएसए को क्या बेनिफिट हो रहा है, तो ये चीज भी आपने मेंशन करी। तो मतलब ओवरऑल पिक्चर अब समझ में आ गई, स्टार्टिंग फ्रॉम कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे चीजें इवॉल्व हुई, एंड इन बिटवीन जो वॉर्स हुए उसमें क्या अकॉर्ड्स हमने साइन करे, नेम्स, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी द वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशंस इन दिस रीजन। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन और, औशिक, रशिया का कोई रोल रहा है? हाँ, रशिया कर रहा है ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर यूएसएसआर का। क्योंकि जब 1971 में हुआ था वॉर, तो उस समय रशिया ने सपोर्ट किया था अरेबिक कंट्रीज को, इजिप्ट और बाकी सब, थ्रू द यूज ऑफ वेपन्स। तो इसलिए रहा है ना, इस यही कारण है कि यूएस का उस समय से रहा है, मतलब कि हम्म। रशिया को इन्फ्लुएंस नहीं करना। रशिया, उनका सोच था कि रशिया अगर गलती से इन्फ्लुएंस कर सकता है अरबिक कंट्रीज को, तो पूरा जगह कम्युनिस्ट हो जाएगा और एंटी यूएस हो जाएगा। हम्म। इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया, सऊदी अरेबिया को सपोर्ट किया अगेंस्ट द टर्किश हम्म। ओटोमन जो उस पर। और फिर उनको इसराइल को सपोर्ट किया अगेंस्ट द अरबिक कंट्रीज इन द वो रीजन, मतलब इराक हो गया या फिर सीरिया हो गया एक्सेट्रा। तो ठीक। उनका, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह प्रॉक्सी वॉर था। हाँ, प्रॉक्सी आज भी वॉर। प्रॉक्सी वॉर है हाँ, वो एक ही है, तरह से। ठीक है। So as per a study, air pollution की वजह से the risk of diabetes also increases.
सो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज पे औषिक एक बार आप डिफरेंस बता दो इन दोनों के बीच। हाँ, इसमें टाइप 1 होता है जिसमें द इंसुलिन इज नॉट प्रोड्यूस बाय द पैनक्रियास, टाइप 1। तो इट इज डायग्नोज अर्ली इन द स्टेजेस, अर्ली ईयर्स, 8 to 2 to 3 years में पता चल जाता है टाइप 1 है कि नहीं। टाइप 2 is basically a chronic disease which is formed only after certain age, for example 20, 30, 40 years तक हो जाता है, where insulin resistance develop in the body and limited amount of insulin is released by the pancreas and the sugar metabolism is decreased and such that the fat is stored across the belly and also the जो होता है ना neck। तो टाइप 2 डायबिटीज इट इज रिवर्सिबल थ्रू यूज ऑफ एक्सरसाइज एंड हेल्दी डाइट। टाइप 1 नहीं होता है रिवर्सिबल, टाइप 1 में आपको इंसुलिन चाहिए, हमें लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ओके। So here we can take this up as a factual information ki author Nandini Das wins 2023 British Academy Book Prize. So we can talk about her work. So she's an Indian born author. Nandini Das has been named as a winner for this, for the Global Cultural Understanding, leading international non-fiction award with the prize money of £25,000 for her book. The name of the book is Courting India, England, Mughal India and the Origins of the Empire. So it is basically based upon modern history. So true origin story of the Britain and India told through England's first diplomatic mission to the Mughal courts. This is what it is based upon. So India-Bangladesh relation that becomes important with this statement of Prime Minister. So India is proud to be the biggest development partner of Bangladesh. So specifically connectivity projects में कल भी हमने देखा था railway link of the Akhora railway line. So connectivity projects पे we are focusing much and Akhora Agartala rail link. This is between Northeast India. It would be passing via Bangladesh to West Bengal. So from Tripura it is there. And apart from this, Chittagong port, एक important location, that is a port in Bangladesh. And with this BIMSTEC में India Bangladesh दोनों partners हैं, BBIN, that is also important. And औशिक आपको यहाँ पे और कुछ बोलना है? नहीं वांसी, हमने डिस्कस कर दिया था, एक ब्रिज भी बनाया जा रहा है फ्रॉम द त्रिपुरा ना, त्रिपुरा से बांग्लादेश तक कोई ब्रिज था। हाँ, हमने डिस्कस कर लिया अगरतला रेल लिंक। So 1971 war जो हम बात करते हैं, Indo-Pakistan war, that was how India played very important role back then. So Sheikh Mujibur Rahman, he was the founder इंटरेस्टिंग of वांसी एक फैक्ट है Bangladesh. ठीक है, बोलो। कि 1967 में जैसे इसराइल ने यूज किया था एयरफोर्स टू डिफीट इट्स नेबर, तो 1961 था, मतलब हर एक चीज कॉज एंड इफेक्ट होता है ना, मतलब इंटरनेशनल फोरम में भी। तो पाकिस्तान ने सोचा 1967 वॉर को एग्जांपल यूज करके कि वो भी ऐसा कर सकते हैं इंडिया के लिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसराइल हैड यूज्ड ऑल इट्स एयरफोर्स टू डिस्ट्रॉय इट्स नेबरिंग कंट्रीज एयरफील्ड। पाकिस्तान ने सिर्फ लिमिटेड अमाउंट यूज किया, 20 से 30। तो इसलिए फिर इंडिया, आप अगर देखोगे, अगर पढ़ोगे इसके ऊपर, तो इंडिया को डिस्ट्रॉय कर भी नहीं पाया और वॉर भी डिक्लेयर हो गया, हार भी गया उसमें। तो आई थिंक कि हर एक जो वॉर होता है, प्रेसिडेंट इसको क्रिएट किया जाता है और उससे वॉर से सीख करके एक नया पैटर्न ऑफ लड़ाई स्टार्ट होता है, मतलब हर जगह कोई भी वॉर होता है दुनिया भर। नाइस पॉइंट। हाँ, मतलब जनरल चीज है कि हाँ हाँ। ओके। सो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने बेसिकली नॉर्म्स रिवाइज किए हैं। सो और यहाँ मानसी, ये शेख मुजीबुर रहमान है ना, ये फाउंडर ऑफ बांग्लादेश है, 1971 में, उन्हीं की बेटी है अभी शेख हसीना, और जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पर। तो वहां पर लगातार डेमोक्रेसी रहा नहीं है, बीच में डिक्टेटरशिप भी आया था।
और हाँ, इनका जो असैसिनेशन हुआ था। नेशनल एंथम है, शेख मुजीब रहमान का। हाँ, नेशनल एंथम है बांग्लादेश का, दैट इज आल्सो बीन रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। सो उन्होंने इंडिया का नेशनल एंथम भी लिखा है, बांग्लादेश का भी। एंड जो हम फेमस स्लोगन की अगर हम बात करें, जो ड्यूरिंग 19